हेलो बच्चों। आज हम हमारी वर्कशीट्स करेंगे यूनिट 1 चैप्टर 1 वेकअप। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर इस पोम को रिसाइट करा था और उसको समझा था। एक बार और मैं इस पोम को रिसाइट कर रहा हूँ ताकि आपको याद आए कि हमने कौन सी पोम को रिसाइट किया था। वेक अप, इट्स अ लवली डे। Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep, the tiniest chicken, chip, chip, chip. Wake up. Okay? So अब हम इसी से रिलेटेड इस पोम से रिलेटेड हम देखेंगे इसकी वर्कशीट को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट फर्स्ट। ओपन योर वर्कशीट एंड लेट्स गेट इट डन। तो वर्कशीट ओपन करेंगे हम और फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो एक्सट्रैक्ट नीचे दिया गया है इसको हमको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर करना है। So what is the extract? Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken, chip, chip, chip. Wake up. Okay. So let's see. What is everyone doing? So everyone is up and about. Okay. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा? That everyone is up and about. So let's see. यहाँ पे हम लिखेंगे everyone is up and about. Okay. What does the poet wants to do? So poet क्या करना चाहता था? So हम देखते हैं poet क्या करना चाहता था. Okay. So poet क्या करना चाहता था? Poet wants to wash and dress and then go out. Okay, so the poet wants to wash and dress and go out. So let's see what does the poet wants to do. So the poet wants to wash and dress and go out. Okay, तो या तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर wash and dress and go out. Okay, next, which word in the extract means the same as to take bath? Okay, किसको? तो wash मतलब क्या होता है? नहाना, है ना, धोना। यहाँ पे wash मतलब है नहाना। इस पोम में क्या है? wash का मतलब नहाना। नेक्स्ट, which of the following is used as an adjective? कौन से इसको एडजेक्टिव तो हम लोगों ने पढ़ा भी था पोम में, लास्ट वीडियो में बताया था। टाइनीएस्ट, EST लग जाता है, सबसे छोटा, है ना, छोटा बिल्कुल जरा सा, तो उसके लिए बोला जाता है टाइनीएस्ट। तो ये टाइनीएस्ट। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। सो पहला क्या है? इट इज अ स्लीपी डे। है क्या ऐसा? नहीं, वो क्या बोलता है? इट इज अ लवली डे, तो इट्स फॉल्स। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर चॉपिंग, है ना, तो बर्ड्स क्या कर रही है? तो नहीं, बर्ड्स तो सिंगिंग, है ना, बर्ड्स क्या कर रही होती है? गा रही होती है, सिंगिंग, so false. Next, the bees are stinging. No, the bees were buzzing, so this is false. Next, it is too early to get up from bed.
Is it? No, it is too late to get up from bed. वो बोलता है ना, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, है ना? So it's not too early, it's too late. So then this is also false. Next, everyone is awake and out. तो ये बोलता है yes, everyone is up and about. So this is true. Next, one should do some exercise in the morning. करना चाहिए ना हम लोगों को सुबह सुबह exercise. Yes, so this is also true. Okay, next, one should not take a bath in the morning. अच्छा, सुबह सुबह नहाना नहीं चाहिए क्या? नहीं, नहाना चाहिए. तो this is false, है ना? हमको तो रोज सुबह सुबह नहाना चाहिए. It is good to wake up late. क्या अच्छी बात होती है देर से उठना? नहीं, हमारी मम्मी डांटती है ना एकदम देर से उठते हैं तो. This is also false. Very good. Now next, short answer type questions. Okay, why does the poet wants to get up? क्यों poet उठना चाहता था? Okay, so let's see क्यों poet उठना चाहता था. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. वो क्यों उठना चाहता था? वो बाहर जाके क्योंकि खेलना चाहता था, इसलिए वो उठना चाह रहा था, क्योंकि वो बाहर जाके खेलना चाह रहा था. So the poet wants to get up because he wants to go out and play, है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे the poet wants to get up because he wants to go out and play. Okay, ये आप अपनी अपनी वर्कशीट्स में लिखेंगे. नेक्स्ट, what are the birds doing? तो birds क्या कर रही होती है? तो वो बोलता है the birds are singing in the trees. तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे the birds are singing, है ना? क्या कर रही है? गाना गा रही है. Singing in the trees. Next, what does the poet wants us to hurry up? हमको क्यों बोल रहा है पोएट के जल्दी करो, है ना? ऐसा बोल रहा है ना, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come to play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepyhead. Why does the poem want us to hurry up? Because it is too late to lie in bed. Okay, ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे the poet wants us to hurry up because, क्योंकि, है ना? because it is too late, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है ना? too late to lie in bed. Okay, very good. Next, name the animal that the poet has mentioned in the poem. उस एनिमल का नाम बताओ जिसको पोम में मेंशन करा गया हो. कौन कौन से एनिमल्स को मेंशन करा है पोम में? बहुत सारे एनिमल्स को. कौन कौन से? द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप. सो द पोएट हैज मेंशन, कौन कौन से उसको मेंशन करा है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम द पोएट हैज मेंशन, किस किस को मेंशन करा है? मेंशन द cow, the horses, the ducks, है ना? and the sheep. और किसी को भी करा है क्या? यस, और भी किसी को करा है. तो यहाँ पे से हम ये एंड हटाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, द शीप एंड द चिकन. छोटे से चिकन को भी तो करा. ओके, वेरी गुड.
What do you think the bird says to each other in the morning? आपको क्या लगता है कि बर्ड एक दूसरे को क्या बोलती है मॉर्निंग में? ओके, सो क्या बोलती होगी बर्ड्स? हम क्या बोलते हैं? अच्छा, हम उठते हैं तो क्या बोलते हैं हम एक दूसरे को? गुड मॉर्निंग, है ना? सो आई थिंक द बर्ड्स ऑल्सो से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। सो हम इसको लिख देते हैं, आई थिंक दैट द बर्ड्स say good morning to each other। एक दूसरे को क्या बोलती है? गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट, हु आर ऑलरेडी अवेक। अच्छा, कौन कौन उठ गए? तो वहां पे हम वो क्या बोलता है जब बोलते हैं ना एवरीबडी इज अप एंड अबाउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट, है ना? सो कौन कौन उठ गए हैं? सब, हर कोई उठ चुका है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट एवरीवन इज अवेक। ओके, एवरी वन इज अवेक। नेक्स्ट, विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। अच्छा, इसमें से कौन सा ऐसे क्रिएचर्स है जो उनसे पहले उठ गए हैं ना, चाइल्ड के पहले उठ गए हैं? तो क्या थी हमारी पोएम? वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर बजिंग बीज, वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। तो कौन कौन उठ जाता है उनसे पहले, है ना? सो कौन उठता है चाइल्ड से पहले? तो सब कोई उठ जाते हैं, हर कोई उठ जाता है ना। कौन कौन से क्रीचर्स उठते हैं? तो बर्ड्स उठ जाती है, बीज उठ जाती है, काउज उठ जाते हैं, है ना? सो वेक अप, ओके, कौन? बर्ड्स एंड बीज, है ना? तो यहाँ पे लिख लेते हैं द बर्ड्स एंड द बीज, द बर्ड्स एंड द बीज wakes up in the morning before the child, है ना? ओके, नेक्स्ट, what type of day is it? So क्या बोलता है? बार बार बोलता है it's a lovely day। तो हम यहाँ पे लिखेंगे it is a lovely day। Very good। Next, what sound does the bees and the birds make on the morning? तो birds और bees क्या? So the bees are buzzing and the birds are singing। Okay, now next, what should we do on getting up every morning? हमको क्या करना चाहिए सबसे पहले जब हम उठते हैं? तो so what should we do? So we should get up and then wash and dress, and then okay, so we should brush our teeth, then wash, then dress। okay, so we should brush our teeth and wash and dress। okay, यहाँ पे आप इसको अच्छा आप बताएंगे, आप अपने हिसाब से बताएंगे आप क्या करते हैं जब आप सुबह सुबह उठते हैं। ये आपका हो जाएगा होमवर्क, आप यहाँ पे लिखेंगे आप सुबह सुबह क्या करते हैं। ओके, नेक्स्ट, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, पुट अ टिक मार्क ऑन द करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है उस पे से। जैसे प्लीज की स्पेलिंग क्या होती है? PLEASE, प्लीज, है ना? नेक्स्ट, बजिंग की स्पेलिंग ये रही ब्लजिंग, है ना? अब इसमें से आप दूसरी भी सबकी स्पेलिंग हमारे पोम में से देखेंगे कौन सी सही है और यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा आप बताओ इनमें से कौन सी चीज क्या करती है? जैसे बर्ड क्या करती है? सिंग करती है ना? तो हम यहाँ पे बर्ड्स को हम सिंग से जोड़ देंगे। इसी हिसाब से आप यहाँ पे बी क्या करती है उसको जोड़ेंगे, फिर चिकन क्या करता है उसको भी जोड़ेंगे। नेक्स्ट, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। ओके, ये भी आपका होमवर्क है, ये सब चीजें आपकी होमवर्क रहेगी, आपको खुद से करना है ये, है ना?
नेक्स्ट, राइट वर्ड दैट राइम विद द वर्ड अच्छा, जैसे कि डे के साथ में प्ले, है ना, जैसे कि ट्रीज के साथ में बीज, है ना, जैसे बेड के साथ में हेड, टेड, आउट का साथ में अबाउट, शीप के साथ में चीप। तो इस प्रकार से और भी हमको दो दो वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट, ये जो है इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्रीज। ओके, कौन कौन सी डिग्रीज होती है, तो ये हमारी एडजेक्टिव्स की अलग अलग डिग्रीज है, जैसे कि ये है कंपैरेटिव डिग्रीज और ये है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ये कौन सी है, ये है कंपैरेटिव, यहाँ पे है कंपैरेटिव एंड दिस इज superlative degree. Okay, so now let's see क्या क्या होती है कंपैरेटिव। तो टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, बिग, बिग का क्या होगा, अच्छा बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्लीप, स्लीपी, स्लीपियर एंड स्लीपिएस्ट। ओके, then next is lovely, 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 lovelier, loveliest. Okay, late, later, and then it comes either latest, okay, then round, rounder, rounder, roundest. Next, small, smaller, and smallest. नेक्स्ट, गुड। ओके, गुड का क्या होता है, गुड का होता है गुड, देन बोलते हैं बेटर, एंड लास्ट इज बेस्ट, लाइक यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स और बेस्ट स्टूडेंट्स। देन हाई, हाई, हायर एंड हाईएस्ट। ओ बेटर, अच्छा ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, किसका होता है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। बैड, बैड का क्या होता है, बैड का होता है वर्स एंड वर्स्ट। ओके, वाइड का क्या होगा, वाइड का होगा वाइडर एंड वाइडेस्ट। ओके, देन इजी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इजी, इजियर, easiest, thin, thinner and thinnest. Next, hot, hotter and hottest. Okay, next, correct the pairs of sentences below using and, but or because, और, है ना, पर या फिर लेकिन और किंतु या फिर क्योंकि या किंतु क्योंकि, है ना। अब हम इसको देखेंगे। इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, है ना, अब समय हो चुका है कि मैं स्कूल के लिए उठूं, लेकिन मुझे अभी और सोना है। तो लेकिन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, बट। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे बट। सो इट इज time to get up for school, but I want to sleep for some more time. Okay, आगे आपको समझ में, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस लिखा, फिर उसके बाद में बट लिखा, फिर ये वाला सेंटेंस लिखा। अब ये बाकी के सेंटेंसेस जो भी हैं वो सब आपके होमवर्क हैं। ओके, ये सारे आपके होमवर्क हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस किस में जैसे क्या क्या। तो शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शीला को उसके बर्थडे पे कुछ चॉकलेट्स मिली। एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, और उसको कुछ, तो यहाँ पे और आ रहा है, और जब भी आता है तो और के लिए हम लिखते हैं एंड। क्या लिखते हैं हम, एंड। ओके, तो इसमें हमको यहाँ पे एंड से जोड़ना है। तो जैसे पहले ये वाला लाइन लिखेंगे, देन लिखेंगे एंड,
और फिर हम ये वाला लाइन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप। अब हर कोई सोने चला गया है। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। अब हम बुक पढ़ेंगे तो लाइट जलाएंगे, है ना। तो हम यहाँ बोल रहे हैं सब सोने चले गए हैं, लेकिन, है ना, क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे मेरी बुक पढ़नी है। तो लेकिन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, वर्ड बट। नेक्स्ट, राजू प्लेस क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेस हॉकी। राजू क्रिकेट भी खेलता है और वो हॉकी भी खेलता है। तो और के लिए कौन सा वर्ड था, अभी हमने बात करी थी, एंड। नेक्स्ट, हेलन केलर वॉज ब्लाइंड। अच्छा, वो हेलन केलर जो है वो अंधी थी, एंड और शी वॉज डेफ टू, और वो क्या थी, सुन भी नहीं सकती थी। तो और आया तो वापस एंड। नेक्स्ट, मोहन रेन फास्ट एंड सोनू रेन स्लोली। और मोहन तेज भागा और सोनू जो है वो धीरे भागा। नेक्स्ट, आई विल नॉट गो टू स्कूल टूडे। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे बुखार है। तो जहां पे भी वर्ड आता है क्योंकि, तो वहां पे उस क्योंकि की जगह पे इंग्लिश में हम उस क्योंकि को बोलते हैं बिकॉज। ओके। नेक्स्ट, माई मदर वॉन्ट्स मी टू स्टडी। मेरी मम्मी चाहती है कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूं। जहां पे भी लेकिन आता है वहां पे क्या आ जाएगा, बट। ओके। नेक्स्ट, हमको 6 वर्ड्स लिखने हैं जो कि एंड हो आईएनजी से। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऑलरेडी दे दिया है, बजिंग। ऐसे ही आप आईएनजी वाले वर्ड हमारी जो पोम है उसमें से ढूंढेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। ओके। नेक्स्ट, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अच्छा, इन वर्ड्स के अपोजिट्स, तो कम, कम का अपोजिट क्या होता है, कम मतलब आओ, और आओ का अपोजिट होगा जाओ, तो जाओ का होता है गो। ओके। वेक मतलब उठना, तो अच्छा उठना, और उसका उल्टा होता है सोना मतलब स्लीप। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, लेट मतलब बाद में, अर्ली मतलब जल्दी। ओके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब फ्रॉम द बॉक्सेस। ओके, ये हम लोगों को यहाँ पे ये जो बॉक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो बॉक्स हम बना देते हैं। एक काम करते हैं आपके लिए, ये देखो, ये रहा बॉक्स। तो हमको इस बॉक्स में से इन वर्ड्स को यहाँ लिखना है। ओके। शी डैश मिल्क इन द मॉर्निंग। अच्छा, सुबह सुबह क्या करते हैं, मिल्क तो हम पीते हैं, तो पीने के लिए होता है ड्रिंक। तो कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ लिख देंगे हम DRINKS, शी ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग। आई डैश न्यू क्लॉथ ऑन माई बर्थडे। अच्छा, तो हम क्या पहनते हैं नए कपड़े, है ना। तो वियर, पहनने को बोलते हैं वेयर। तो WEAR, वेयर। ओके। नेक्स्ट, द सन। ओके, दिस इज सन, है ना, दिस इज सन। द सन डैश इन द ईस्ट। अच्छा, सन क्या करता है, तो सन कहां से उगता है, ईस्ट से, तो राइजेस, RISES, राइजेस। सुधा वेरी फास्ट। अच्छा, सुधा क्या करती है, सुधा बहुत तेज दौड़ती है। दौड़ने को हम क्या बोलते हैं, रन। सो सुधा रन्स वेरी फास्ट। द अर्थ। अच्छा, हमारी अर्थ क्या करती है, सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है ना। ओके, जैसे ये देखो, ये अपना सन है, और इसके आसपास ऐसे अर्थ जो होती है हमारी, वो अर्थ ऐसे गोल गोल इसके आसपास घूमती है, ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको बोलते हैं रिवॉल्व। क्या बोलते हैं, रिवॉल्व, है ना, REVOLVES, रिवॉल्व। नेक्स्ट, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इन द पार्क, क्या करते हैं, बच्चे पार्क में जाके खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स। ओके, इसमें से कॉमन नाउन कौन कौन से है। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, जो कि सभी के लिए यूज हो। और हमको प्रॉपर नाउन मतलब जैसे किसी का नाम, तो हमको ब्लू पेंसिल से कॉमन नाउन्स करना है और रेड पेंसिल से प्रॉपर नाउन। तो पहले हम ब्लू पेंसिल से कॉमन नाउन करते हैं। अलादीन, अलादीन तो एक ही उसका नाम है, मतलब ये प्रॉपर नाउन है, ये तो नहीं है। हैड अ वंडरफुल लैम्प, लैम्प जो है बहुत सारे हो सकते हैं, तो इट्स अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट, द रिवर गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री। गंगोत्री भी एक ही है, गंगा भी एक ही है, बट रिवर इज अ कॉमन नाउन। द प्लैनेट जुपिटर, अब प्लैनेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट जुपिटर एक है। हैज 7 मून्स, मून भी एक दो ही होते हैं, मतलब जिसमें वहां तो 7 है, बट सैटर्न हैज 21। ओके, नाउ जिम एंड एलेक्स, ये तो नाम है, तो प्रॉपर नाउन है।
वर्क इन एन ऑफिस, ऑफिस बहुत सारे हो सकते हैं। इन फ्रांस, फ्रांस भी एक ही है। अभिषेक एंड सीमा गो टू स्कूल, स्कूल भी बहुत सारे हो सकते हैं। टुगेदर करण वॉज गोइंग टू द मार्केट, तो बहुत सारी जगह हो सकते हैं, तो मार्केट। अब हमको क्या करना है, रेड पेंसिल से हमको जो है प्रॉपर नाउन्स लगाना है। तो प्रॉपर नाउन्स के लिए जैसे अलादीन, गंगा, गंगोत्री, जुपिटर, सैटर्न, देन जिम, देन एलेक्स, देन फ्रांस, देन अभिषेक, देन सीमा, देन करण, ये सब हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, अब आप समझ गए आपको किस प्रकार से करना है, कहाँ पे आपको रेड से करना है, कहाँ पे आपको ब्लू से करना है। नेक्स्ट, मेक न्यू वर्ड यूजिंग पीआर। अच्छा, पीआर का यूज करते हुए हमको नए वर्ड बनाने हैं। अब आप सोचो क्या बना सकते हैं हम नए वर्ड्स पीआर का यूज करते हुए, है ना। तो हम लोग आप इसको यूज करेंगे, आप सोचेंगे थोड़ी देर तक कि हम पीआर का यूज कर करके कौन कौन से नए वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर, प्रोनाउन, है ना, जैसे कि प्रे। ओके, आप इस प्रकार से नए वर्ड यहाँ पे बनाएंगे। ये आपका क्या है, ये आपका है होमवर्क। ओके, नेक्स्ट, लुक एट द वर्ड बजिंग इन द पोएम, इट इज रिटन विद डबल जी। जैसे हमारी पोएम में बजिंग वर्ड है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 2 बार जी लिखा है, डबल जी लिखा है ना। नाउ यूज द गिवन डबल लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स बिलो। अब ये जो हमारे पास में कुछ गिवन लेटर्स हैं, इनको यूज करते हुए इन वर्ड्स को पूरा करना है। ओके, तो देखो क्या हो सकता है, जरा देखें जरा। फर्स्ट इज हॉपिंग, HOPPING, हॉपिंग। अच्छा, ये हॉपिंग का मतलब क्या होता है, बताएं। हॉपिंग का मतलब होता है उछल कूद। हॉप मतलब जैसे हम, आपने खरगोश को देखा होगा, वो क्या करता है, हॉप करता है, तो इसलिए होगा यहाँ पे हॉपिंग। नेक्स्ट, रनिंग, है ना। नेक्स्ट, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग करते हैं ना, ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसे हेलो, हाउ आर यू, हाय, ये सब ग्रीट होते हैं। नेक्स्ट, ओके, ये क्या है, CA, है ना, तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, कैलिंग, कॉलिंग, कॉलिंग करते हैं ना आप, CALLING, कॉलिंग, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, बताएं जल्दी से। देखो हमने कौन कौन से कर लिए, हमारे पास में कौन कौन से हो गए, हम उन पे टिक कर लेते हैं फटाफट जरा। हमारे पास PP हो गया है, NN हो गया है, E हो गया है, और LL हो गया है। अब हमारे पास बच रहा है SSDDTTBB। अच्छा, हम लोगों ने ये तो पढ़ा हुआ है, एडिंग, है ना, हम करते हैं ना ऐड। उसके बाद आप क्या करते हो घर पे, बैटिंग, है ना, खेलते हैं जब बैटिंग करते हैं। देन हम क्या और क्या करते हैं यहाँ पे, हमारे पास हो गया D, और हमारे पास में हो गया T। अब बचा है B और S, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रॉबिंग, है ना, मतलब लूटना। और हिसिंग, हिसिंग कौन करता है, स्नेक, स्नेक हिसेस, है ना, तो स्नेक हिसिंग करता है। नेक्स्ट, टेक द help of the dictionary to write these words. All of them begin with the names of an animal. One has been done for you. A cow has no courage. Okay, that means it's a coward. Okay, a pup that is moved with a string, so that is known as PUPPET, puppet. Okay, a cat that can throw stones, which can throw stones, याद करेंगे जरा। ओके, देन हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, अ बुल यूज्ड इन अ गन, गन में कौन सा बुल यूज होता है, अच्छा बुल कौन सा यूज होता है, बुलेट यूज होती है मेरे को तो, है ना। कैटापुल्ट यूज होता है थ्रो करने के लिए स्टोन को, बुलेट यूज होती है गन में। तो अ गोट ऑन द चिन ऑफ अ मैन, अच्छा, उसको जो ऐसे यहाँ पे छोटी सी दाढ़ी रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, गोटी, है ना, गोटी बोलते हैं मेरे हिसाब से। तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क तीनों, है ना। वैसे मैंने आंसर बता दिए हैं, आप अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आप आंसर लिख लेंगे। After waking up early in the morning, we go for a walk. Write 5 things you do during your morning walk.
हम जब सुबह उठते हैं तो हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है आप क्या क्या करते हैं जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या देखते हैं। तो आपके घर से कोई मॉर्निंग वॉक पे जाता हो तो उसके साथ आप भी मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे और आप जो जो देखेंगे वो सब यहाँ लिखेंगे। ओके, unscramble the letters and each of the following to make words related to nature। ओके, इनको हमको unscramble करना है और इनसे हमको वर्ड्स बनाने हैं। ओके, वन हैज डन फॉर यू, तो एक आपके लिए मैं कर देता हूँ, देखते हैं ना। जैसे कि ये देखो, FLOWER फ्लावर, है ना। अब आप इन तीनों को आप अपने हिसाब से करेंगे। ओके, जैसे कि सॉइल, है ना, ये अब आप अपने हिसाब से करिएगा। ये भी आपको हमने दिया है होमवर्क। ओके, जो होमवर्क वाले हैं वो सब हम बाद में करेंगे, है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन आपको इस वीडियो में भी करा है, बट होमवर्क आपको खुद से करना रहेगा। ओके, बाय।